Hello everyone, welcome to the biology class and I'm your educator Khushbu Bhardwaj. Today's topic is very important for all the exams, चाहे वो गेट हो, CSIR हो, DBT हो, NEET हो, every basic biology examination must always ask about cell signaling. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा और बहुत आसान भी है इस टॉपिक में स्कोर करना. इट इज़ वेरी इजी अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. तो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? टू सेल्स interact with each other with some kind of signal, right? One cell performs several functions, like this cell has to proliferate, it has to divide, right? This cell has to divide into two, or this cell has to get differentiated into a specific type of cell. ठीक है? Into a specific type of cell, or this cell has to undergo cell death. Okay? There are numerous things which a cell can perform. कितने सारे रोल्स होते हैं. जैसे एक सेल अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है. देयर माइट बी सम सिग्नलिंग हैपनिंग इनसाइड अ सेल. सेल के अंदर कोई सिग्नलिंग परफॉर्म हो रही होंगी, अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं. एक रिस्पॉन्स में आप देख रहे हैं कि सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, दूसरे रिस्पॉन्स में आप देख रहे हैं सेल की डेथ हो रही है, देख रहे हैं कि सेल प्रोलिफरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और बढ़ा रहा है अपनी प्रोजेनी को. सो सेल सिग्नलिंग बहुत तरह की होती है. हम सब डिटेल में देखते हैं. इस वीडियो में यू विल learn about what is cell signaling, how two cells are connected with each other, by what means, how one cell performs different type of cellular functions, what is involved in those. We will talk about this in great details, or we will also understand what is the overall mechanism occurring in the cell signaling and what are the types through which a cell can interact to another cell. A cell can interact within another cell, or what are the types by which a cell performs intracellular signaling. So how do cells from different types of the living system perform different type of functions? They are used in building different type of structures. Like in this image you are seeing some elongated cells, right? These elongated cells, these are present near the basement membrane, right? This is known as stratum basale. This layer is known as stratum basale, and these specific type of epithelial tissue or the epithelial cells, the specific type of rectangular epithelial cells are present just above the basement membrane, right? Then above this we can find these sickle shaped thin cells which are of irregular shapes. Actually there is no regular shape and they are packed just above these rectangular cells or the elongated cells. This layer is known as stratum spinosum. Then above these cells you can see a different structure cells, right? So how these cells are packaged in the sheets, and no other type of cells is present in those sheets. Like here is an elongated cell sheet which is just above the basement membrane. You cannot see a different type of cell like this over here. How do these cells know that where they have to get fit into, or what kind of layer they have to form? There must be some interactions between these cells happening, or there must be some signaling, or there must be some
some mechanism by which these cells know that yes, I have to build this, or these type of cells know I have to get above these rectangular or elongated cells. How do these cells know? And this is not only present in the animal tissues, plants have also the same thing occurring inside them, right? So if there is a transverse section of a leaf, you can easily see that epidermis cells are of different shapes and different sizes. Palisade tissue is very elongated. Then after that, spongy tissues are having different kind of structure with different functionalities, of course. So these cells are very different from each other, and they are forming different layers inside the living systems, right? Like this is one kind of layer, this is second kind of layer, this tissue is forming third kind of layer in which different types of cells are present. So how do these cells know that okay, I have to build an upper layer of the leaf, I have to make epidermis, I cannot go into the palisade layer, or this spongy layer knows that I have to build only the spongy layer and I cannot be here? How do these cells know? There must be a sort of interaction occurring inside them. There must be some sort of signaling happening there that tells them that where do they function or where do they have to fit, right? So how do these cells form these perfect layers? And the answer to this question is because of the cell signaling processes. Because of the cell signaling process, because of the interaction between cells, right? So like right now we are interacting through this video lecture. You are listening to me, I am giving you some information which you are going to process, and then you are going to sit into that exam and respond accordingly, right? There is a sort of interaction occurring here, there is a sort of signaling occurring between you and me. Similarly, cells also perform signaling. In order to perform certain responses or to trigger some responses, some functions, they perform certain type of signaling. Okay, so this type of signaling in which many cells are involved and they know where to sit and what to form. So such type of signaling is known as intercellular signaling. Intercellular signaling, right? When two cells know that we have to perform a specific function and all the cells are connected with that function, एक सेल दूसरे सेल को बताता है कि चलो भाई तुमको यहाँ पे ये लेयर बनाना है, राइट? इस स्ट्रक्चर में भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग सेल्स, अब दो सिमिलर टाइप के सेल्स के बीच में भी इंटरेक्शन हो रही है, दो डिफरेंट टाइप के सेल्स के बीच में भी इंटरेक्शन हो रही है, राइट? तभी तो इसे पता है कि इसे यहाँ पे इस सेल के साथ स्ट्रक्चर फॉर्म करना है और इस सेल को पता है कि इसके ऊपर कौन होगा. सो देयर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस अकरिंग इनसाइड दीज सिग्नलिंग पाथवेज. सो यहाँ पे हम इंटरसेलुलर सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, तभी ये अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग शीट्स बना पा रहे हैं. बट एक पर्टिकुलर सेल की अगर आप बात करो, देयर इफ इमेजिन करिए कि ये एक सेल है, देयर इज अ सेल ए, राइट? देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच आर अकरिंग इनसाइड सेल ए. तो किस तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उसमें भी तो कोई सिग्नलिंग पाथवे रन करता होगा, राइट? तो इस तरह के सिग्नलिंग पाथवे जिसमें मान लीजिए आपको इस सेल में आपको कैल्शियम आयन चाहिए, राइट? मान लीजिए इस सेल को इस वक्त रिक्वायरमेंट है कैल्शियम आयन की बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? क्या सेल में हर वक्त कैल्शियम फ्री में अवेलेबल रहता है? ऐसा नहीं है. सेल बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड करके रखता है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को. सो कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, वरना डिसबैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, अलग तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट होने लगते हैं उनके लिए भी. सो सेल्स में हमेशा कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं रहती है, बट स्पेसिफिकली अगर किसी चीज़ में कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है तो सेल को कैल्शियम आयन लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से. तो उसके लिए क्या होगा? देयर मस्ट बी अ सिग्नलिंग पाथवे. एक सिग्नलिंग पाथवे रन करेगा और कैल्शियम आयन सेल में लाया जाएगा. कि GPCR सिग्नलिंग की वजह से, राइट, देयर इज अ रिसेप्टर
विच इज़ नोन एज अ GPCR रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे एक लाइगेंड बाइंड करता है, ठीक है, इस रिसेप्टर पे एक लाइगेंड बाइंड करता है और एक सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है, सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाती है या स्विच्ड ऑन हो जाती है। सिग्नलिंग को एक्टिवेट या स्विच ऑन होने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइगेंड को जाके एक रिसेप्टर पे बाइंड करना होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, PIP2 इसको क्लीव कर दिया जाता है, PLC विल क्लीव द PIP2 इनटू IP3 और IP3 क्या करता है, ये एक ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट कैल्शियम आयंस को साइटोसोल में लेके आता है और साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल्स बिकॉज ये वे। तो कैल्शियम आयन आपका साइटोसोल में आ जाता है। तो इस तरह की प्रोसेसेस जो बाहर के सिग्नल्स के थ्रू सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है और उसको ट्रांसमिट करके आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है अल्टीमेटली। इस तरह की चीज़ें जो है वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में आती हैं, राइट। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। वहाँ पे आपने देखा था कि दो सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, राइट। तो क्या हो रहा होगा, इस सेल से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, इस सेल्स में जा रहे होंगे, यहाँ से आ रहे होंगे, इस पे रिसेप्टर होंगे, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, रिसेप्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लाइगेंड यहाँ पे आके बाइंड करेगा और फिर अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसका इफेक्ट आपको सेल में देखने को मिलेगा। सो ये होता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स। अब जब भी सिग्नलिंग होती है तो सिग्नल पहुँचाने के लिए देयर मस्ट बी अ मीडियम, राइट। इतना पोर्शन इसको आप रिसेप्टर बोल रहे हो, ठीक है, दिस इज अ रिसेप्टर। तो अभी जस्ट फॉर एन इंस्टेंस आप सपोज कर लो कि दिस रिसेप्टर इज यू, राइट, यू आर द रिसेप्टर एंड आई एम द लाइगेंड, दिस इज योर ट्यूटर। A ligand can be a protein, a ligand can be carbohydrate, a ligand can be lipid, right। इसका बायोमोलिकुलर नेचर कुछ भी हो सकता है। इट ऑल्सो कैन बी अमाइनो एसिड और सम गैसेस, सारे इसके केमिकल नेचर हो सकते हैं लाइगेंड के। और रिसेप्टर्स के भी बहुत सारे नेचर हो सकते हैं। मोस्टली रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दे आर प्रोटीन्स। रिसेप्टर्स आर proteins. Proteins too can be the soluble proteins or they can be membrane bound proteins, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपको प्रोटीन कहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर आपको दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है, लाइगेंड के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। लाइगेंड के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई एम द लाइगेंड, यू पीपल आर रिसेप्टर्स। आप उस इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे हो, राइट, यू आर रिसीविंग दैट इन्फॉर्मेशन। अभी आप सिर्फ रिसीव करने का काम कर रहे हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। अभी आप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन, आई एम द लाइगेंड, यू आर अ रिसेप्टर और अ रिसीवर। सो दिस information when is received by the receptor, then the receptor gets activated, right। अभी तक आई थिंक आप लोगों का ब्रेन एक्टिवेट हो गया होगा। तो the receptors are activated, और एक्टिवेट होने के बाद you people will give me a response by performing good in your examinations. So once you are activated, you can respond to the given information. And यहाँ पे रिस्पॉन्स मैंने क्या बताया, आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। सो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद करनी है, आपको ये चीज़ें प्रोसेस करनी है। यहाँ पे आप एक और तरह का रिसेप्टर देख रहे हैं। रिसेप्टर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, राइट। दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर। एंड
दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ RTK. अभी फ्यूचर लेक्चर्स में वी विल डिस्कस अबाउट RTK. अभी आप इसकी इमेज देख लो, आपको familiar हो जाएगा. So this is one domain. This is this is one polypeptide of RTK, right? And this one here is another. So ये dimer होता है. RTK is a dimer. It is a membrane bound receptor. It is a dimer. एंड पहले ये मोनोमर फॉर्म में रहता है, राइट? जब अगर ये लाइगेंड, दिस इज़ अ लाइगेंड, राइट? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द लाइगेंड, ठीक है? और ये दोनों क्या है? दीज आर रिसेप्टर्स. पहले क्या होता है कि जब रिसेप्टर इस RTK पे बाइंड नहीं करता है तो सिर्फ ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे कि एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इस तरह से, ये इस तरह से बाइंडेड फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड करता है इस रिसेप्टर पे, एक पे, दूसरा रिसेप्टर भी इसके पास आके इसको बाइंड कर लेता है और ये मोनोमर से, दिस इज़ वन मोनोमर, राइट? ये मोनोमर से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एंड दे बिकम अ डाइमर, ठीक है? अब ये डाइमर बन गया है. उसके बाद क्या होता है? दे गेट एक्टिवेटेड. ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर के दे फॉस्फोराइलेट ईच अदर. यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है. RTK का मतलब होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. इनके जो टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं, इन रिसेप्टर्स पे अमाइनो एसिड टायरोसिन होता है. यहाँ पे जो टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं, राइट, ये उसको काइनेज मतलब जो कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दे, ठीक है? तो ये वाला रिसेप्टर इसको फॉस्फेट ऐड करता है टायरोसिन पे और ये वाला रिसेप्टर दूसरे रिसेप्टर को टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेट करवा देता है. तो दिस इज़ अ टेक्निकल थिंग विच वी विल डिस्कस इन द RTK सिग्नलिंग. बट मैंने अभी आपको सिर्फ रिसेप्टर्स कैसे होते हैं ये बताने के लिए बता दिया कि RTK में क्या फंक्शनिंग होती है. यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल रिसेप्टर है, ठीक है? सिंगल रिसेप्टर है दिस, एंड दिस कैन बी ए GPCR, राइट? आई होप अभी आपको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के बारे में पता चल गया होगा. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे जो लाइगेंड बाइंड करते हैं वो कैसे होते हैं? इस पे जो लाइगेंड बाइंड होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है? दीज आर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स. क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो ये सिर्फ बाहर ही रह पाते हैं सेल के. अब ऐसे सिग्नलिंग क्यों होती है? क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल आपको इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है और वो हाइड्रोफिलिक है, वो थर्मोडाइनमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन नहीं कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता है वो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोफोबिक एंटिटी को कैसे क्रॉस कर सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट. तो वो नहीं कर सकता है. इस वजह से इस तरह की सिग्नलिंग्स होती हैं. वरना जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स हैं वो बाहर ही रह जाएंगे. सेल को पता कैसे चलेगा कि हमें परफॉर्म क्या फंक्शन करना है? ओके, सो फॉर दैट रीज़न हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स की वजह से रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स इनके सिग्नल्स को पास करवाने में, ट्रांसमिट करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. वी विल मीट इन another part of this video where we will discuss about the other type of receptors, which are the nuclear receptors, and then we will move gradually towards the types of the cell signaling. What are the different mechanisms by which the two cells interact with each other? What are those? This will be taken in a separate video. So if this video was helpful for you, अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो please make sure to subscribe this channel and like the video, share it among your friends and help us to grow and learn with us. Thank you so much for watching this video. We'll see you next time.